Class 9th sample paper, mathematics in detail. Question number 1, which of the following is irrational? Now, irrational numbers are those which have roots in simple language. 4 is a perfect square, 9 is a perfect square, so we can write 2 by 3. Now, root 12 can be written as in prime factorization form 2 into 2 into 3 whole upon root 3. So here we can cancel root 3, left with 2, and 2 is a rational number. Root 7 cannot be further factorized, and 81 is a perfect square of 9, which gives root 7 is irrational. So answer is C part. Moving to question number 2, the value of 249 whole square minus 248 whole square. We have two numbers in between subtraction sign, so this is nothing but algebraic identity, which is a square minus b square. So what is the expansion of a square minus b square? A plus b and a minus b. Now identify what is a, what is b. अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, 249 is a and 248 is b. Substitute a plus b and a minus b. 249 plus 248 in one bracket. Second bracket is 249 minus 248. Second bracket, if you subtract, result is 1, and first bracket result is 497. Any number multiplied by 1 is the number itself, hence the answer is 497. Now question number 3. दो पॉइंट्स आपको गिवन है A and B. First is always X, second is Y coordinate. So A का एब्सिसा क्या हुआ 4, B का एब्सिसा -3. Now यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, so be careful while dealing with sign. Minus of minus is positive. 4 plus 3 is 7. क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर भी हमें सोल्यूशन गिवन होता है, दैट मीन्स व्हेन यू सब्स्टिट्यूटेड, आंसर उसका 0 आना होता है. नाउ इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 2x plus 3y is equal to k. सब्स्टिट्यूटेड, x की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह 0. So result is 4 plus 0 is 4 only. So value of k क्या हो गई है, 4. Moving to 5. A, B and C are 3 points on a line. क्वेश्चन हम बहुत केयरफुली रीड करेंगे. A lies in between B and C. कहीं नहीं लिखा है कि A मिड पॉइंट है. ओनली थिंग इज मेंशन्ड इज ये इन दोनों के बीच में. बीच, बिटवीन डजंट मीन मिड पॉइंट. सो चेक द ऑप्शन BC इज हाफ ऑफ AC. ये हमें गिवन ही नहीं है कि मिड पॉइंट है, सो ये आंसर नहीं हो सकता. AC इज 1/4 ऑफ BC. पार्ट्स ही दो हैं तो कैसे हो सकता है. AC इज इक्वल टू BC, ये भी नहीं हो सकता. नोवेयर इज इट इज मेंशन्ड, बट सम ऑफ AB एंड AC इज BC. दिस इज करेक्ट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन. SAS is your side angle side, ये क्राइटेरिया है. ASA is also a criteria, angle side angle. SSA is not a criteria, side side angle कोई क्राइटेरिया नहीं होता. SSS is side side side. क्वेश्चन में लिखा है not a criteria, so answer is C. Moving to question number 7. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. Find the formula for area of triangle. What S stands here? Sum of all the sides divided by 2, that is semi-perimeter. So formula is C part, S, S minus A, S minus B, S minus C. Direct answer. Question number 8. Which of the following rational number is equivalent to a decimal that terminates? अब termination हमारी denominator पे decide होती है. सो जितने भी डिनोमिनेटर इसमें मेंशन्ड है सबका आप प्राइम फैक्टराइज करिए. 6 is 2 into 3, 7 is 7 into 1,
8, 2 into 2 into 2 and 3 is 1. टर्मिनेट हमारा रैशनल नंबर कब होता है? व्हेन डिनोमिनेटर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power any number and 5 raised to the power any number इनका मिक्सचर, या अकेला 2 raised to the power exponent and 5 raised to the power exponent. चेक आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ये कौन सा है? सी ऑप्शन, जिसमें सिर्फ 2 raised to the power नंबर है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की दो कंडीशंस होती हैं, या तो आपके एक्सपोनेंट एक्स की एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, तब आपका ये पॉलिनोमियल होगा. नाउ इफ यू चेक फर्स्ट, x square is in denominator, so when we change it, it will become negative exponent, denominator से ऊपर जाएगा. Similarly root x, x हम कैसे लिखते हैं? x raised to the power 1/2, ये फ्रैक्शन में, so again it is not a polynomial. c again open it, x square 3x raised to the power 3/2 upon root x को कैसे लिखेंगे? x raised to the power 1/2. अगर आप इसको फर्स्ट टाइम एनालाइज करोगे तो c इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहे हैं, बट देर इज अ स्कोप टू सॉल्व इट बिकॉज bases are same, we can subtract the exponent. So 3/2 minus 1/2, यहाँ पर 3x होना चाहिए, वो 3 मिसिंग है. Similarly d में नेगेटिव एक्सपोनेंट है, so this is not the answer. Final answer is c. c में 3 मिसिंग है, आंसर होना चाहिए x square plus 3x. Always remember polynomial कब होगा? When variable raised to the power is positive integer, not a fraction, not a negative integer. Now 10th question, one angle is equal to 3 times its supplement. अब रिकॉल करो सप्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री, सो लेट फर्स्ट एंगल बी x, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस x. अब ये जो आपकी स्टेटमेंट फॉर्म है, कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन फॉर्म. वन एंगल इज x इज इक्वल टू symbol of equal 3 times its supplement is 180 minus x. Open the bracket using distributive property. 3x को transpose करो variable on one side. So x plus 3x is equal to 540. X plus 3x is 4x. 4x will go in denominator. So result will be 135. 135 is one angle. So answer is B. Moving to question number 11. 11th question भी डायरेक्ट है. A point both of whose coordinates are negative. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. सो आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ? डायरेक्ट यूक्लिड ज्योमेट्री थ्योरम्स के लिए हमें प्रूफ चाहिए होता है. क्वेश्चन नंबर 13. इन ट्राइंगल ABC, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ड्रॉ अ डायग्राम. इससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी. एंड लेबल इट. AB is equal to AC, angle A is 50 degree. When opposite sides are equal, their angles are also equal. So हमने दोनों को x let कर लिया है. Now since it is a triangle, we will apply angle sum property, क्योंकि हमें angle निकालना है, इसलिए हम angle sum property लगाएंगे. Form an equation, solve it and find value of x. So result will be 65. Question number 4. Read question carefully. If
angles with measure x and y form a complementary pair. Complementary pair means 90 degree. x और y already 90 degree form कर रहे हैं. Then which of the following pair measures as supplementary pair? That means अगर आप ये दो pairs को add करते हो तो वो 180 सम दे. So we'll go option by option. हमें x plus y already 90 given है. Now check कौन से दो numbers आपको 90 दे रहे हैं. So pick first option, x plus 47, y plus 43. x plus y already आपको 90 दे रहे हैं. What about 47 plus 43? If you add it up, 47 and 43 is again giving you 90. So what is 90 plus 90? 180. बिंगो. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हमने पिक किया था उसी में 180 आ गया. नो नीड टू सॉल्व फर्दर. सो आंसर इज ए. 15. इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, सेमी पेरीमीटर निकालना है. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सेमी पेरीमीटर इज डिवाइडेड बाय 2. 13 plus 14 plus 15 is 42. 42 divided by 2 is 21. So answer is C part. Moving to question number 16. The value of fourth root, then third root, then 2 square. इसको 1 by 1 ओपन करो. whenever there is a root तो हमारी पावर क्या लगती है? In fraction. So root 3 will become 1 by 3. Root 4 will become 1 by 4. Use brackets, all the parentheses required. Now this is power of a power form. So this will be 2 into 1 by 3 into 1 by 4. 2 and 4 can be cancelled. Answer will be 2 raised to the power 1 by 6. Moving to question number 17. Very important question. ये भी ऑलमोस्ट सारे पेपर में आता है, सारे सैम्पल पेपर में ही आपको दिखेगा. क्वेश्चन नंबर 17. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज फिक्स्ड. चाहे आप इवन हाफ किलोमीटर जाते तब भी वो फेयर फिक्स्ड है 18. एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मीन्स आप उसके अलावा कितने भी किलोमीटर लेते हो तो आपको उस पर 11 रुपीज़ वो चार्ज करेगा टैक्सी. सो टोटल फेयर विल बी फर्स्ट किलोमीटर प्लस रिमेनिंग. सो टोटल डिस्टेंस अगर x है, ऑलरेडी फर्स्ट किलोमीटर के आप पैसे दे चुके हो 18, तो कितना रिमेनिंग है? x माइनस 1. टोटल हमें x जाना था बट हमने ऑलरेडी 1 किलोमीटर के पैसे दे दिए हैं. सो रिमेनिंग इज x माइनस 1 और वो कितना चार्ज कर रहा है? 11 रुपीज़. एडेड अप दैट विल बी योर फेयर. ओपन द ब्रैकेट. 18 minus 11 is 7 and 11x. So answer is C. very 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 important. ये किसी भी फॉर्म में आ जाता है, टैक्सी फॉर्म में, ऑटो फॉर्म में, आपके पार्किंग फॉर्म में. देयर आर मेनी वेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज योर NCERT बेस्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है. इफ AOC प्लस BOE इज 70, ट्राई टू लोकेट. सबसे पहले हम इन एंगल्स को लोकेट करेंगे. स्टार्ट कैसे करते हैं? अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही हैं, पहले उससे स्टार्ट करो. AB एंड CD आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन से. इंटरसेक्टिंग लाइन से हमारा क्या आता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर AOC और BOD आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो हमने सबसे पहले वो एंगल फाइंड आउट कर लिया. नाउ हमें इक्वेशन गिवन थी AOC और BOE इज 70. आउट ऑफ दिस AOC हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम इजीली BOE निकाल लेंगे इस इक्वेशन से. रिप्लेस इट. BOE विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. 70 माइनस 40 इज 30 डिग्री. अब हमारे पास BOE भी आ गया. AB इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल फॉर्म होता है दैट इज
180 डिग्री। अब हमारे पास 3 एंगल्स में से 2 एंगल ऑलरेडी है, 40 + 30 + x, सो 180 - 70 इज 110। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल बोला है। रिफ्लेक्स एंगल होता है टोटल एंगल माइनस जिसका हमें रिफ्लेक्स निकालना है, COE का हमें रिफ्लेक्स निकालना है। कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, 360 से हम 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 250 डिग्री। डोंट ऐड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स को ऐड करके 360 से नहीं निकालेंगे। easiest way is subtract that angle from 360. now assertion and reason, इसको ध्यान से पढ़िए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने x यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, 3, सो डिग्री मस्ट बी 3 नॉट 4, सो पहला आपका फॉल्स हो गया। रीजन क्या दिया है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दिस इज ट्रू, और यही इसका करेक्ट रीजन होता है। बट फर्स्ट वन इज फॉल्स, दैट इज वाई डी, वेयर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में, बट इसको हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है। ड्रॉ एन एंगल, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, always draw angle in the form of diagram, एंगल्स बनाओ, जो जो उसमें गिवन है वो लेबल करो, इट विल बी easy to locate। अब हमें बाइसेक्टर बोलना है तो हमारे दो एंगल्स इक्वल होंगे, AOC एक एंगल है, BOC एक एंगल है, OE इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो XX, सिमिलरली OD सेकेंड एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है सो YY। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, x + y कितना हो जाएगा, 2x and 2y, टेक 2 कॉमन, 180 डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्री, राइट। सो पहला हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ट्रू। सेकेंड रीजन रीड करिए, if the sum of two adjacent angle is 180 then the non common arms of the angle in a straight line, ये भी ट्रू है, बट ये इसका रीजन नहीं है। ये बता रहा है कि 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, बट ये बाइसेक्टर के बारे में नहीं बता रहा। हेंस बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।